اسباب دیکھے جاتے ہیں؟ اسباب نہیں دیکھے جاتے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی شان دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سوچنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اللہ کیسے کرے گا، ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی شان میں شک کرنے والی بات ہے۔ جو مالک الملک ہے نا، جو ہر کام ہر کام کرنے کی قوت رکھنے والا ہے، پھر وہ حالات کیسے بنائے گا یہ اس کے اوپر ہے، یہ وہ اس پہ چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت نے نبی ہونے کی نیک لوگوں میں سے بشارت سنا دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں دیکھتے ہیں آگے کیا بیان ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کیسے ہوگا، یکون ہوگا کیسے ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، ایک لڑکا، وقد حالانکہ یقیناً، بلغنی آ پہنچا ہے مجھے، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور بیوی میری، عاقر بانجھ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اسی طرح، اللہ تعالیٰ، یفعل جو وہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے کن کے اوپر شک شبہ دور کرنے والی آیات۔ کبھی کسی کے دل میں رتی برابر بھی یہ خیال آ جائے کہ کیسے ہوگا، تو ان آیات کو ذہن میں لایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے نہیں ہے، انسان کے لیے ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں پھر ہمیں یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ جو کام جیسے چاہتا ہے نا ویسے کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت ذکریہ علیہ السلام کی طرف۔ ربی ہے میرے رب، ندا منادا مرکب اضافی بھی بنتا ہے۔ اور انا کیسے، انا جو ہے نا اصل میں یہ استفہامیہ ہے، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، کیسے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جیسے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جون سے جس طرح، یعنی اس طرح کا اس کا مفہوم آتا ہے۔ تو اب یہاں سے جو جملہ بنے گا نا وہ جملہ استفہامیہ بنے گا۔ کیسے یکون ہوگا، یکون فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی ناقص ہے یہ چکے، لہذا کاف اور نون روٹ ورڈ ہے اس کا، اور ہوگا کیا؟ کانا جو ہوتا ہے نا، ماضی اس کا کانا ہے نا، کانا یکون، تو یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ اسم کانا جو ہوگا وہ ضمیر کی شکل میں اندر موجود ہوگا، کیونکہ یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل اندر باہر دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ایک اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور دو طرح سے اس کو کر سکتے ہیں۔ لی کو مرکب جاری بنا دیں گے، اور غلام جو ہے وہ اس کی خبر بن جائے گا، یہ متعلق بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ خبرو کانا بن جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور لی کو خبر مقدم کر کے اور غلام ان کو مبتدا مؤخر کر کے اس پورے جملے کے حصے کو بھی اس کے لیے خبرو کانا بنا سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ وقد حالانکہ، واو حالیہ جملہ ربط توڑے گا، قد حرف تحقیق، یعنی کہ بات تاکید میں بھی آ گئی اور تحقیق ثابت شدہ بات ہوگی۔ 108 سال کا انسان جو کہ ساری زندگی اپنی جوانی گزار چکا ہے اور بڑھاپے کی اس عمر کو آ پہنچا ہے کہ اس کی بیوی بھی بانجھ ہے، تو بات تو تحقیقاً ہو گئی نا، اس نے یہ بات کہی کہ اب تحقیق یعنی یقیناً ایسا ہے۔ بلغ پہنچا، آ پہنچا ہے، بلغ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور نی اس کے ساتھ نون وقایا کو لے کر آئی ہے، یا متکلم کی ضمیر جو کہ مفعول بنے گی فعل کے لیے۔ بلغنی آ پہنچا ہے مجھے، یہ اس کے اوپر زبر جو ہے حمزۃ الوصل کا ہے، الکبر بڑھاپا، فاعل بن جائے گا الکبر، میرے اوپر بڑھاپا آ پہنچا ہے۔ وامرأتی، واو حرف عطف، امرأتی بیوی میری، مرکب اضافی کا پیٹرن یہ امرأتن کی جو ہے یہ جڑ کے آیا ہے نا، تو یہ اسم اور پلس یا متکلم کی ضمیر، تو اور میری بیوی یہ مبتدا بنے گا، عاقر بانجھ ہے اس کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب اضافی مبتدا بنا، اور عاقر جو تھا یہ اس کی خبر بن گیا، اسم الفاعل بھی ہے۔ دیکھیے نا،
अंडरस्टूड सी बात है इस सूरत हाल में कि एक इंसान इंसान ही है ना, नबी भी है तो क्या है, नबी बाद में है, पहले तो वो एक इंसान है। तो कुदरती सी बात है इतने बुढ़ापे में, जबकि बुढ़ापा आ चुका है और बीवी बांझ है, जवानी की उम्र गुजार चुके हैं, उस उम्र में दाखिल हो चुके हैं कि अब उनकी हड्डियां भी कमजोर हो चुकी हैं। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशखबरी के ऊपर उनका रिएक्शन है कि कैसे होगा मेरे यहाँ बेटा, मैं तो बुढ़ापा आ चुका है मुझे और मेरी बीवी तो बांझ है। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, काला फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, कराली का इसी तरह से, का हरफे जारा है, राली का इसम इशारा है, मारफा है, मबनी है, वाहिद के लिए है, मुजक्कर के लिए है। अल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला, यफ़अलु वो करता है, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, माँ जो कुछ, माँ मौसूल, यशा वो चाहता है, यशा फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा और मौसूल के लिए सिला बन गया। ये मौसूल सिला जो है यफ़अलु फेल के लिए मफऊल बन गया। अल्लाह ताला जो करता है, जो वो चाहता है, और अल्लाह जो है ये फाइल है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसकी तरकीब देखें तो इस तरह भी हम इसकी तरकीब कर सकते हैं, कज़ालिका इसी तरह, अल्लाह, ज़ालिका अल्लाह, ज़ालिका अल्लाह, ये आ गया इसम इशारा। ठीक है, ये इसम इशारा जो है मुब्तदा, और यफ़अलु मा यशाउ इसकी खबर आ गया। ये जो होगी ना, मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया का हरफे जार से मजरूर हो गया, ये हरफे जर मानिन तशबीह है। ठीक है, और फिर ये पिछले जुमले का हिस्सा बनेगा काला के लिए। ठीक है, तो ये एक तरकीब है, इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे मजीद खोल के डिस्कस करेंगे। काला रब्बी अन्ना यकून ली गुलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अभी खुद ही दुआ की, अभी दुआ कर ही रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को भेज के बेटे की बिशारत दे दी। तो इसकी यानी कि ये बात जो कह रही है ना कि मेरे बेटा कैसे होगा, आप देख रहे हैं ये रिएक्शन के फौरी तौर पे शुक्र अदा करने से पहले वो ये रिएक्शन जो दे रहे हैं ना, ये एक तरह की अश्योरेंस मांग रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा। हालात जानते हैं ना आपने कि अगर इंसान को कोई कमजोरी और कोई मोहताजी इस तरह की हो, कोई मजबूरी हो, और फिर इस तरह की खुशखबरी उसको मिल जाए, तो सबसे पहले उसके जहन में कैसे कैसे का लफ्ज आएगा ना, कैसे होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान बता रहे हैं कि वो अल्लाह को असबाब की एहतियाज नहीं है, अल्लाह को किसी सबब की जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम असबाब उसके मोहताज हैं। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। यहाँ पे हमें एक बहुत ही सबक आमूज और एक बहुत ही अपनी जिंदगी के लिए लेसन मिल रहा है कि अल्लाह की रहमत से किसी भी वक्त मायूस नहीं होना, कभी भी किसी भी तरह के हालात हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को असबाब का मोहताज नहीं समझना। ये सारी दुनियावी असबाब बेकार के बेकार रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं जब अल्लाह की तरफ से कुन हो जाता है। किसी भी काम के लिए, चाहे औलाद के लिए, चाहे कोई भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ हमारी हाजत या जरूरत हो, तो ये तमाम असबाब धरे के धरे रह जाते हैं। हमने खलूस नियत के साथ दुआ करनी है और जो हम मतलब चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से, उसकी फरियाद करनी है। अल्लाह को हमारी दुआ कबूल आ जाए, मंजूर हो जाए, खूबसूरत से खूबसूरत दुआ मांगनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माउल हुस्ना का एहतमाम करना है, उनका जिक्र करना है, अस्कार करना है, और सबसे ज्यादा अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें देख के दूसरों की तरफ हों, चाहे उनको खुश होना है, अल्लाह से अपने लिए भी मांगना है। ये हमें रवैये बताते हैं कि हमने जिंदगी जो है वो किस तरीके से गुजारनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा क्या है। अब देखते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 41 में। काला उसने कहा, रब्बी जुअल ए मेरे रब, आप बना दें, ली मेरे लिए, आयतन कोई निशानी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी बता दें। काला अल्लाह ताला ने फरमाया, आयातुका, आयातुका निशानी है आपके लिए, अल्लाह ये के ना, तुकल्लिमा आप बातें कर सकेंगे, अन्नासा लोगों से, सलासा तीन, अय्यामिन तीन दिन तक। आपके लिए निशानी ये है कि 3 दिन तक लोगों से आप बातें नहीं कर सकेंगे, इल्ला सिवाय रमजन कुछ इशारों के, यानी इशारों में बात कर सकते हैं, बाकायदा तौर पे कलाम करके बात नहीं करेंगे।
वज़कुर, और आप याद करो, रब्बा का, अपने रब को, कसीरन, कसरत से, वसब्बिह, और आप तस्बीह बयान करो, बिलअशीही, शाम को, वल इबकारी, और सुबह को। यहाँ पे और अपने रब को कसरत से याद करो, सुबह शाम तस्बीह बयान करो। अच्छा जी, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जब उन्होंने कलाम किया कि ए मेरे रब, कोई निशानी बता दीजिए कि वाकई ऐसा होगा। इंसान होता है ना, थोड़ा सा कोई भी हो, जब उसको कोई खुशखबरी मिलती है थोड़ा सा परेशान होता है। ये एक नबी का रवैया जरूर है, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान थे, यानी उन्होंने अल्लाह से अर्ज क्या की कि मेरे इत्मीनान के लिए मुझे मालूम हो जाए कि वाकई ऐसा होना है, ये जो कलाम मैं सुन रहा हूँ ये वाकईतन तेरी तरफ से है, यानी मुझे कोई गलत फहमी ही नहीं हुई, ये जो फरिश्तों की आवाज है ये वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 3 दिन तक आप किसी से बात नहीं कर सकेंगे, गोया आपकी कुव्वत गोयाई जो थी ना वो सलब हो गई, यानी आपकी जुबान कहा जाता है सूज गई मुंह के अंदर। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निशानी थी, वो किसी से कोई बात नहीं कर सके सिवाय इशारों का नाम, इशारों में बात कर सकते थे। अगर वो बात करना चाहते थे तो उनसे बात हो नहीं सकती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी निशानी बतानी थी ना। तो इसको भी और डिटेल में देखेंगे, पहले इसकी ग्रामर देख लेते हैं। क़ाला, उसने कहा, फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, और रब्बी, ए मेरे रब, निदार मुनादा, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, इजअल, आप बना दें, फेले अमर, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरखास्त की गई है, इजअल, जीम आइन लाम रूट वर्ड के साथ फेले मुजारे और फेले अमर है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, ली, मेरे लिए, मुरक्कब जारी, मुतालिक हो जाएगा जो अल फेल के, आयतन, कोई निशानी, मफूल आ जाएगा फेल का। तो यहाँ पे फेल एक जुमला मुकम्मल हो गया, ए मेरे रब आप मेरे लिए कोई निशानी बता दें। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, आयातु का निशानी है आपके लिए, यहाँ से जुमला इस्मिया शुरू होगा, आयातु का, मुरक्कब इजाफी जो है ना मुब्तदा बनकर आएगा, आगे जुमला इसकी खबर बनकर आएगा। आपके लिए निशानी है, अन, ला, अन हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, और ला, लाए नाफिया, अन प्लस ला, यहाँ दो लफ्ज जमा हो रहे हैं। जो अन नासबा है वो मुजारे को मंसूब करेगा, ये देखिए, तुकल्लिमा, आप बात कर सकोगे, फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, तो कल्लिमा, आप बात कर सकोगे, कलाम कर सकोगे, काफ लाम मीम इसका रूट वर्ड है, अन्नासा, लोगों से, नून वाव सीन रूट वर्ड के साथ मफूल आ गया फेल के लिए, पहला मफूले भी, तो कल्लिमा फेल का, सलासता, अदद, 3, अयामीन मादूद, मौदूद अदद क्या बना, मुरक्कबे अददी, ये मुरक्कबे अददी जो है इसका इराब भी मुरक्कबे इजाफी की तरह ही होता है बिल्कुल। तो हम इसको भी फेल के लिए दूसरा मफूल बनाएंगे, ठीक है। आप बात नहीं कर सकोगे 3 दिन तक, इल्ला, इल्ला कलमा हसर, और इस्तस्ना भी है, कलमा इस्तस्ना भी है, तो हम देख रहे हैं रमजन, यहाँ पे मंसूब होकर जो आ रहा है वो मुस्तस्ना आ रही है, यानी कि कुछ इशारों में बात कर सकते हैं, आप जुबान से कलाम नहीं कर सकते। कलाम होता है ना तो कलीमा, बात करना, बोलना अदा करके अल्फाज को, और रम्ज होता है इशारों में बातें करना, यानी आप बात तो करेंगे लोगों से लेकिन सिर्फ इशारों में करेंगे। वज़कुर, वाव हरफे अतफ, उज़कुर फेले अमर जमा मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, राल काफ रा रूट वर्ड के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि आप याद करो हजरत जिक्र अलैहिस्सलाम, और रब्बा का, अपने रब को, और रब्बा इसम का इसके साथ जमीर जुड़कर आई, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, ये मुरक्कब इजाफी उज़कुर फेल के लिए मफूल वन, कसीरन, हाल भी बयान किया जा रहा है और मफूल भी है, हालत, नोयत, कैफियत, ये सारी मफूलात होते हैं, मकाम, तो कसरत से, तो ये भी मफूल आ गया उसको फेल का दूसरा, वाव हरफे अतफ है, सब्बिह फेले अमर, वाहिद मुजक्कर हाजिर, और तस्बीह बयान करो, बिलअशी, शाम को, अल अशी वल इबकारी, इन दोनों को अतफी के जरिए जोड़ के मुरक्कब अतफी बनाएंगे, और बी हरफे जार के लिए मजरूर कर देंगे, और ये मुरक्कब जारी सब्बिह फेल के मुतालिक बन जाएगा, तो वो ये वाव अतफ के जरिए पिछले जुमले का ही हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये बातें एक
हातिफ गैबी से सुनी थी, यानी कि सिर्फ आवाज आई थी, आवाज करने वाला कोई नजर नहीं आया था, फरिश्ते थे ना। और अच्छी साथ थी, और अच्छी हालत थी, हालत नमाज में थे। इस वजह से उनका गुमान तो यही था पक्का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अमीन जानिब अल्लाह है। लेकिन वो निहायत मतवाजे, मुत्तकी और मोहतात बंदे थे। इस वजह से दिल के एक गोशे में कहीं ये खटक भी हुई कि कहीं ये मेरे दिल की आवाज तो नहीं है, कहीं मेरा दिल तो नहीं ऐसा चाहता, तो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि ये मेरे दिल की मख्फी हो और शैतान इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। तो इस वजह से उन्होंने अपने रब से दरखास्त की कि "ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई ऐसी निशानी बता, कोई ऐसी निशानी ठहरा दे जिससे मेरे दिल को ये इत्मीनान हो जाए कि इतनी बड़ी बिशारत तेरी तरफ से।" ये आप सोचिए ना कि एक इंसान जो पूरी जिंदगी औलाद की मोहब्बत के लिए उसके दिल में ख्वाहिश रही हो, और फिर उसको इस उम्र में ये ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आ जाए, तो जाहिर है वो तो उस चीज के लिए वसूख चाहेगा ना। तो उन्होंने इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से निशानी मांगी ताकि उनके दिल को करार आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को सुन के और वाकई ये खुशखबरी उनको सुनाई दी है, ये कोई शैतान का धोखा नहीं है। अल्लाह ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और निशानी के तौर पे बताया कि 3 दिन रात जो है वो किसी से बात नहीं कर सकेंगे सिवाय इशारों के। फिर दूसरी चीज ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिक्र से, कसरत से जिक्र का जो वो है उनको हुक्म दिया, तस्बीह करें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना है, सुबह शाम अपने रब की तस्बीह में मशगूल रहना। जाहिर है खास मुद्दत के लिए आदमी पे एक ऐसी हालत का तारी हो जाना कि वो जुबान से कोई बात ही ना कर सके, तो कुछ तो उसने करना है ना। तस्बीह और तहलील कर सके तो किसी शैतानी तसरुफ का नतीजा नहीं हो सकती ना। ये तो रहमानी तसरुफ ही है जो उसको बता रहा है कि सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और अपनी जात का वसूख पैदा कर रहे हैं। अगर जिक्रिया अलैहिस्सलाम पे ये हालत जो थी ये गैर इख्तियारी तौर पर होती, तो कतई तौर पर ये एक निशानी थी कि इनके बेटे की जो बिशारत है मिन जानिब अल्लाह है, यानी इसमें शैतान का कोई दखल नहीं है। कुरान ने यहाँ जमनन इस बात की तरदीद की है कि जो हालत हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम को आई है ना, वो उनका कोई जुर्म, कोई सजा नहीं थी कि उनकी जुबान जो थी वो मोटी हो गई थी, मुंह के अंदर सूज गई थी और वो बात नहीं कर सक रहे थे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ उनको निशानी के तौर पे ये उनके साथ किया था। ठीक है। जो लोग जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, कुरान के असलूब से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जिक्र अस्कार का, तस्बीहात का जिक्र करते हैं, तो ये हदायत होती है उन लोगों के कि वो सीधे रास्ते के ऊपर रहें। ठीक है ना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करते हैं शुक्र अदा करने वाले बंदे को, जिक्र करने वाले बंदे को। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं ना सुबह शाम दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखो, याद करो, ये सेम उसी पैटर्न पे आया है कि सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान की जाए। आज हमारा लेसन यहीं तक है या एक आयत और पढ़ लें?